Hi, friends. Warm welcome to all of you to today's session. So, today's session is going to be about the next chapter of average. So, all of you are aware that this particular platform is a place wherein we work on your foundation so that it will help you crack your competitive exam, or if you are seeking a job and over there you have an exam to crack. So, over here, you can really build on your foundation so that when the real challenge comes, you are prepared. So without wasting any further time, let's get started with today's average part 3. So let's start. So I'm going to share the screen with all of you right now. I told you that through the concept of average speed in today's session, let's talk about a very, very simple concept and have a look at the very first question. Now, if you have been following this particular channel, you know how to go about it. You first need to try, and you please pause the video, try and solve the question. After you've solved it, then come back and then have a look at the solution. That way, you will benefit the most out of these videos. Now, have a look at the first question. The first question says that Ravi travels from his house to work at 40 kilometer per hour and returns at 60 kilometer per hour, and I have to find his average speed. Now, I have discussed this question many a times in the class, and the student seems that this is a very easy question. It's 40 divided by 60 divided by 2, 40 plus 60 divided by 2, which would be equal to 50 kilometer per hour, because you just need to divide it by 2 because there are two different speeds given. Total distance divided by total time, जो पूरा डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. सो अगर मान लीजिए दैट if we say that this is the distance that Ravi has to travel, the distance is A, correct? So can I say that he is traveling, जब जाते वक्त he is traveling with the speed of this 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो जा रहा है. तो अगर वो 40 किलोमीटर पर स्पीड पे वो जा रहा है, then how much time does he take? The time he takes, time is equal to time. जब हम लोग बात करते हैं टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. सो डिस्टेंस यहाँ पर कितना है A, स्पीड कितना है 40. सो दिस इज द टाइम ही इज गोइंग टू टेक टू ट्रैवल फ्रॉम, अगर हम लोग बोले पॉइंट P से पॉइंट Q तक. And while returning, his speed over here becomes 60 kilometer per hour, है ना? It becomes 60 kilometer per hour, but distance तो वही A ही है. तो अभी what will be the new time while returning? The new time is going to become A divided by 60. तो clearly अगर आप देखोगे, as per average speed, what is average speed? Now अगर मुझे average speed निकालना है, average speed is equal to, we can say total distance, that is A plus A, because वो जाता है A, वापस आता है A. जाते वक्त टाइम कितना लेता है? A by 40. वापस आते वक्त टाइम कितना लेता है? A by 60. So if I solve this, I should find out what is my average speed over here, right? So अगर आप देखोगे आपका न्यूमरेटर में है 2a डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में अगर मैं इन दोनों को एलसीएम ले लेता हूं, सो इन दैट केस इट बिकम्स 40 into 60. मैं what I do is I'm not taking the LCM over here. I'm just over here मैं 40 into 60 रख रहा हूं, and ऊपर में यहाँ पर I'll keep it as 60a plus 40a, which is equal to, you can say this is 2a and multiply by 40 into 60. जो नीचे वाला ये पार्ट है, दिस पार्ट गोज अप, है ना, डिवाइडेड बाय, और यहां पर क्या रह जाता है? यू हैव 100a. So obviously a and a gets cancelled. The two zeros will get cancelled over here. So what do you land up over here? This was 60, by the way. 60, 40 and 2a. So cancellation of zeros and a के बाद I am left with 48 kilometer per hour. So friends, the answer is not 50 but 48 kilometers per hour, because average speed is total distance by total time, right? तो लेट्स टॉक अबाउट अ मेथड वेर इन हम लोग इसको फटाफट जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली जब एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस आते हैं. देखिए यहाँ पर द डिस्टेंस दैट वाज गिवन टू, हमने उसको ए लिया, और ए लेने की वजह से ही हमें ये वाला कैलकुलेशन करना पड़ा. अगर मैं ए नहीं लेके, अगर मैं ये डिस्टेंस को सोचता कि उसको वर्क पे जब जाता है ही टेक्स 120, लेट्स से 120 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना पड़ता है. बोलोगे क्यों 120 किलोमीटर मैंने इधर अज्यूम किया? बिकॉज 40 एंड 60 का जो एलसीएम है, द एलसीएम है ना 40 और 60 का, दैट इज इक्वल टू 120. तो जब आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो भी स्पीड्स दिए हुए हैं उसका अगर एलसीएम आप कंसिडर कर दोगे एज द डिस्टेंस, योर जॉब विल बिकम वेरी इजी. अब आप सोचो, अगर कोई बंदा 40 किलोमीटर पर आवर पे, 40 किलोमीटर पर आवर पे वो ट्रैवल कर रहा है 120 किलोमीटर, तो कैन आई से दैट ही विल टेक 3 hours टू रीच द डेस्टिनेशन. जब वापस आ रहा है ही इज ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, तो कैन आई से वापस आते वक्त ही विल टेक 2 hours. अभी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 120, 120 दैट इज 240 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो गया? 5 hours.
which is equal to 48 किलोमीटर पर आवर. तो दिस इज अ फास्टर वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. अगर आप जो डिस्टेंस है उसको इंस्टेड ऑफ ए अज्यूम किए, अगर आप उसको एलसीएम ऑफ द स्पीड्स पकड़ लोगे. नाउ हैव अ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन एक रिवर्स ऑर्डर में दिया गया है. तो क्वेश्चन में बोला है रवि फ्रॉम हिज हाउस टू वर्क प्लेस एंड बैक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. राइट. तो वो कितना ट्रैवल करता है? वो जो टोटल डिस्टेंस है, जो भी टोटल डिस्टेंस है, वो उसका जाना प्लस आना अगर आप देखोगे, दैट मीन्स द एवरेज स्पीड विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, वही दे दिया गया है एज हाउ मच, एज 50 किलोमीटर पर आवर. एवरेज दे दिया गया है यहां पर. और बोला है ही रिटर्न, वापस आते वक्त ही रिटर्न एट 60 किलोमीटर पर आवर. तो वो कितने स्पीड पे गया होगा, है ना, वो कितने स्पीड पे गया होगा. राइट. तो अगेन अगर सिर्फ यही क्वेश्चन किसी को एक्सपोज किया जाए तो बोलता है अगर 50 एवरेज है और वो 60 पे वापस है तो वो 40 पे गया होगा. 40 और 60 का एवरेज तो 50 होना चाहिए. बट प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखिए हो कि वो सच नहीं है. तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा. अब लास्ट क्वेश्चन से मैंने जो सीखा है उसी को अप्लाई कर देते हैं. यहाँ पर दो स्पीड दिया गया है, एक है 50, एक है 60. तो इन दोनों का एवरेज कितना होता है? 300 किलोमीटर. सो दिस टाइम लेट मी अज्यूम दैट द डिस्टेंस ही इज गोइंग टू ट्रैवल इज 300 किलोमीटर एवरी टाइम, लेट्स से. तो 300 किलोमीटर, अगर वो 300 किलोमीटर जाता है और वापस भी आता है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 600 किलोमीटर्स, है ना. टोटल डिस्टेंस इज 600 किलोमीटर्स. तो कैन आई से दैट 50 किलोमीटर पर आवर जो उसका एवरेज स्पीड है शुड बी इक्वल टू 600 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय टाइम, जो मुझे पता नहीं है. सो टाइम कितना हो जाता है? सो टाइम ओवर बिकम्स 600 डिवाइडेड बाय 50 विच इज इक्वल टू 12 आवर्स. इसका मतलब है रवि को जाने में और आने में 12 घंटे लगते हैं, 12 आवर्स, अगर वो जाता है और आता है. राइट. सिमिलरली क्वेश्चन में बोला है ही रिटर्न, वापस आते वक्त वो कितना स्पीड पे आया था? 60 किलोमीटर पर आवर. तो वापस आते वक्त उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना था? 300 किलोमीटर पर आवर. एट व्हाट स्पीड? 60 किलोमीटर पर आवर. तो कैन आई से दैट द टाइम दैट ही विल टेक इज 300 डिवाइडेड बाय 60 विच इज इक्वल टू 5 आवर्स. उसको 5 घंटे लगे होंगे वापस आते वक्त. राइट. इसका मतलब ये हुआ दैट व्हाइल ही वाज ट्रैवलिंग दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस उसको कितने टाइम लगे होंगे? 7 घंटा, बिकॉज टोटल तो उसको 12 घंटा लगा है. सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट द स्पीड इन विच ही ट्रैवल्ड, उसने 300 किलोमीटर ट्रैवल किया है और उसको 7 घंटे लगे हैं. इसका मतलब व्हाइल गोइंग, जाते वक्त रवि का जो स्पीड है दैट शुड हैव बीन इक्वल टू जो डिस्टेंस है दैट इज 300 किलोमीटर डिवाइडेड बाय द टाइम दैट इज 7 आवर्स, है ना. विच इज इक्वल टू, आप इसको फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में इट विल बिकम 42.85 किलोमीटर पर आवर. 42.85 किलोमीटर पर आवर. राइट. सो आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर कि हाउ आप एवरेज स्पीड का क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. नाउ आई हैव गिवन यू अनदर क्वेश्चन, लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना. तो यहां पर वैसे ही क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन 2 में था वैसे ही मैंने आपको क्वेश्चन एक 3 दिया है. दैट रवि ट्रेवल्स फ्रॉम हिज हाउस टू वर्क and back at an average speed of 120 किलोमीटर पर आवर. If he returned at 60 किलोमीटर पर आवर, at what speed did he travel while going to work? सेम चीज है, बस मैंने स्पीड को चेंज कर दिया है. राइट. सो अगर आप इसको पॉज करके सोचिए कैसे इसको आप सॉल्व कर पाओगे. एंड इन दैट केस अगर आप इसको सॉल्व कर पाओगे, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जो भी इसका आंसर है कृपया इसका आंसर मुझे बताइए. दैट एट व्हाट स्पीड डिड ही ट्रैवल व्हाइल गोइंग टू वर्क. एंड इफ यू गेट द आंसर करेक्ट, इन दैट केस मैं आपको एक बढ़िया सा गिफ्ट देने वाला हूं. आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑफर टू ज्वाइन आवर मास्टर क्लास. एंड वो ऑफर जो होगा वो एक्सक्लूसिवली आपके लिए होगा अगर आप इसका सही आंसर मुझे दे पाए तो. राइट. एंड द टाइम दैट यू गेट ओवर हियर, बिकॉज दिस वीडियो इज गेटिंग पोस्टेड 5:30 टुडे, तो टिल टुमारो 5:30 तक आपके पास टाइम है. आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके इसका जो भी आंसर है आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए. थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स. माय नेम इज नील एंड आई एम ओवर हियर टू टेक केयर ऑफ योर एप्टीट्यूड वरीज. The reason I have started this channel is because I believe strongly that aptitude should not be the reason why you get rejected in any of your competitive exams. Please subscribe to this channel if you want and if you like this particular content. And अगर आपको personal attention चाहिए, in that case, kindly join our masterclass. Our masterclass के लिए आपको एक WhatsApp group में join करना पड़ेगा. And in that WhatsApp group, we will discuss all the do's and don'ts of and we'll also take you through that आप कैसे करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो एंड आप पर्सनल अटेंशन पा सकते हो so that your foundations of aptitude are very very clear. Thank you very much. I'll see you in the next video.